Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی. السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے. سید شاہ احمد اللہ حسینی نے شہر کے مشہور چندہ چور جو آج کل مقامی پارٹی کی پناہ میں ہیں اور کروڑوں روپے کا غبن کر چکے ہیں اور عیش و آرام کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہے ہیں، ان سے سید شاہ احمد اللہ حسینی نے 10 سوال کیے ہیں. وہ 10 سوال کیا ہے، آئیے سنتے ہیں تمام تفصیلات انہی کی زبانی. HYC حیدرآباد یوتھ کریج کے ذمہ داران سے میرے 10 سوالات ہیں اور ساتھ میں عوام کی جانکاری بھی. دراصل HYC کے چندہ کلیکشن ایکٹیویٹیز سوشل میڈیا کے ذریعے ہے، اسی لیے میرے سوالات بھی سوشل میڈیا کے ذریعے ہے. پہلا سوال، تلنگانہ میں قریب 5800 NGOs کام کرتے ہیں، اس میں HYC کا نام کہیں نہیں ہے. HYC NGO کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہے، تو پھر کیوں ہر جگہ HYC کو NGO آرگنائزیشن بتا کر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے؟ دوسرا سوال، HYC حیدرآباد یوتھ کریج کو ایک سوسائٹی کے تحت رجسٹرڈ کروایا گیا، لیکن HYC کے نام سے پیمنٹس پرسنل اکاؤنٹس میں کیوں لیے جا رہے ہیں، جو کہ قانوناً جرم ہے اور عوام کے ساتھ چیٹنگ ہے؟ تیسرا سوال، سوسائٹی رجسٹریشن کے تحت 2000 روپے سے زیادہ کی رقم کیش میں نہیں لی جا سکتی، تو پھر HYC کے نام پر لاکھوں روپے کے کیش واچرز کیسے بنائے جا رہے ہیں؟ چوتھا سوال، HYC کی جانب سے ڈونرز کو کیش ریسیپٹ کی بجائے کیش ووچر بنا کر کیوں دیا جا رہا ہے؟ پانچواں سوال، فلسطین کے نام پر جو چندہ مانگا جا رہا ہے وہ اب تک HYC کے سوسائٹی اکاؤنٹ میں کتنا وصول ہوا اور پرسنل اکاؤنٹس میں کتنا وصول ہوا، عوام کو بتا دیں. میں ایک آڈیو میں سنا ہوں جس میں HYC کے ایوب کا کہنا ہے کہ تو کون ہوتا ہے اکاؤنٹس کی ٹرانسپیرنسی پوچھنے والا؟ تو میں بتا دوں کہ اگر کسی کا ذاتی کاروبار ہے، کوئی ذاتی دھندا ہے، یا کوئی اللہ کے نام پر خیرات مانگ رہا ہے، کوئی فقیر ہے، تو کسی کو بھی اس پر سوال کرنے کا یا اس سے حساب پوچھنے کا بے شک کوئی حق نہیں ہے. لیکن جب معاملہ مسلمانوں کے نام پہ ہو، قوم کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، فلسطین اور غزہ کے مظلومین کے نام پہ ہو، سوشل میڈیا پر عوام کے سامنے ہو اور چندہ عوام سے لیا جا رہا ہو، تو معاملہ عوام سے جڑ جاتا ہے اور عوام کو پورا حق ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، مذہب کے لیے، فلسطین اور غزہ کے مظلومین کے لیے اور جو لوگ چندہ دے رہے ہیں ان کے لیے کھل کر سوال کرے. اور عوام سے چندہ لینے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ عوام کو ٹرانسپیرنسی کے ساتھ جواب دیں، عوام سے لیے گئے چندے کا عوام کو حساب بتائیں. میں نے آڈیو میں یہ بھی سنا تھا کہ HYC کے ایوب نے کہا کہ میرے فیس سے لوگ میرے اکاؤنٹ میں پیسہ دے رہے ہیں. تو چھٹواں سوال، جب کسی کے ذاتی فیس ویلیو پر لوگ ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں ان کو پیسہ دے رہے ہیں تو پھر HYC کا نام کیوں لیا جا رہا ہے؟ ایک طرف HYC کے نام پہ پرسنل اکاؤنٹس میں پیسہ لیا جا رہا، دوسری طرف پرسنل فیس ویلیو کہہ کر HYC کا نام لیا جا رہا. ساتواں سوال، غزہ فلسطین کے ویڈیو فوٹوز بتا کر غزہ میں معصوم بچوں کو کھانا نہیں ہے اور وہ گھاس کھا رہے ہیں کہہ کر مسلمانوں سے چندہ جمع کر کے ایجپٹ میں کیوں بانٹا جا رہا ہے؟ ایجپٹ میں جس طرح کے غریب ہے ویسے مستحق غریب تو ہر ملک، ہر ریاست اور ہر شہر، ہر محلے میں ہے اور امداد کی ضرورت سب کو ہے. تو مسلمانوں سے چندہ فلسطین کے لیے لے کر کہیں اور کیوں استعمال کیا جا رہا ہے؟
8वां सवाल, फलस्तीन और गाजा में इमदाद की कमी है कहकर मुसलमानों को क्यों गुमराह किया गया, जबकि फलस्तीन और गाजा के लिए इमदाद की कोई कमी नहीं है। इस सवाल के जरिए अवाम को मैं बताना चाहूंगा कि फलस्तीन का मसला कोई 1-2 साल का मसला नहीं है। ये लड़ाई करीब 75 साल से चलते आ रही है और 75 साल से इंटरनेशनल लेवल पर लगातार इमदाद पहुंचाने का काम चल रहा है और फलस्तीन व गाजा के लिए 75 साल में कभी इमदाद की कमी नहीं हुई। साल में 2 मरतबा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है और अरब नेशंस, यूरोपियन यूनियन और यूएसए से हजारों मिलियन डॉलर की इमदाद की जाती है। इसमें इजिप्ट, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन, यूएई, यमन, यूरोप, यूएसए और इन सारे मुल्कों के साथ वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है। यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसीज UNRWA इन्वॉल्व है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल इन्वॉल्व है। फलस्तीन को 1997 तक 3,420 मिलियन डॉलर की इमदाद पहुंचाई जा चुकी है। गाजा स्ट्रिप पे करीब 20 लाख की आबादी है। सिर्फ गाजा स्ट्रिप पे अब तक 4.5 बिलियन डॉलर की इमदाद पहुंचाई जा चुकी है। ईरान हर साल 100 मिलियन डॉलर की इमदाद करता है। 2008 और 9 में जब इसराइल बुरी तरह से गाजा को तबाह कर दिया था, तब इजिप्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए सारे मुल्कों ने 4.5 बिलियन डॉलर्स की इमदाद की थी, जिसमें इंडिया से भी गाजा के रिकंस्ट्रक्शन के लिए 20 मिलियन डॉलर की इमदाद की गई थी। लेकिन इसराइल हमेशा से फलस्तीन और गाजा के लिए इमदाद रोकने की कोशिश करता रहा है। कई मरतबा बॉर्डर्स बंद करता रहा और फिर इंटरनेशनल लेवल पर दबाव पड़ने पर खोलता रहा। इस बार हमास के हमले के बाद इसराइल 9 अक्टूबर 2023 को हथियारों पर रोक लगाने के बहाने बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। जमीनी सतह पर बॉर्डर से हो या फिर समंदर से या फिर बाई एयर, कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। गाजा में जाने के लिए बॉर्डर्स पर सिर्फ 3 रास्ते हैं। 2 पर इसराइल का कब्जा है और 1 पर इजिप्ट का, लेकिन सब बंद है। आज भी गाजा के बॉर्डर्स पर कई मुल्कों के हजारों इमदादी कंटेनर्स बॉर्डर्स खुलने के इंतजार में रुके हुए हैं। इजिप्ट बॉर्डर पर अभी भी कई 100 मिलियन डॉलर की करीब 240 टन इमदाद रुकी हुई है। फिर भी बॉर्डर्स बंद होने के बावजूद रमजान और ईद के मौके पर 9 मुमालिक के करीब 14 एयरक्राफ्ट गाजा में फूड एयर ड्रॉप्स किए, जिसमें यूएस, यूके, यूएई, नेदरलैंड, जर्मनी, इजिप्ट, इंडोनेशिया और जॉर्डन शामिल है। यूएस सेंट्रल एयर कमांड की तरफ से अभी तक 855 टन फूड एयर ड्रॉप किया गया। 4 दिन पहले 11 अप्रैल को करीब 3 टन फूड और जरूरियात की अशिया एयर ड्रॉप की गई। ईद के दूसरे दिन अरब आर्मी जॉर्डन आर्म फोर्सेस की तरफ से करीब 184 एयर ड्रॉप्स किए गए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अभी तक 33 मरतबा फूड और जरूरियात की अशिया का जुमला 2477 टन गाजा में एयर ड्रॉप किया। 2 दिन पहले यूएई के 2 और इजिप्ट के 2 एयरक्राफ्ट 82 टन फूड एयर ड्रॉप किए। और इधर HYC के लोग फलस्तीन को इमदाद की जरूरत है कहकर मुसलमानों को गुमराह किए। वीडियोस बना के गमजदा बैकग्राउंड लगा के अपनी सेल्फ मॉडलिंग करते हुए जोशीले जिहाद के बैकग्राउंड कलमात लगा के गाजा के मासूम बच्चे घास खाने मजबूर है कह के मुसलमानों से चंदा जमा कर रही। फलस्तीन व गाजा के नाम पर चंदा जमा करके 4 थैलों पर अपने स्टिकर्स लगा के इजिप्ट के गरीब बच्चों के वीडियोस, फोटोज बता रही। मुसलमानों को इसका जवाब चाहिए कि फलस्तीन और गाजा में इमदाद की कमी है कहकर मुसलमानों को क्यों गुमराह किया गया। 9वां सवाल, फलस्तीन व गाजा में इमदाद पहुंचाने की आपके पास क्या अथॉरिटी है। गाजा एक वॉर जोन है, वहां बिलियंस डॉलर की इमदाद लेके बड़े बड़े मुमालिक के हजारों कंटेनर्स बॉर्डर पर रुके हुए हैं। तो आप लोग 4 थैले लेके HYC के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के साथ गाजा में कैसे जाएंगे। क्या आप लोग इजिप्ट, ईरान, इराक, कुवैत, कतर, सऊदी अरबिया, ओमान, बहरीन, UAE, यमन, यूरोप, USA
इन सारे मुमालिक से भी ज्यादा ताकतवर और बड़े हैं? क्या कई मुल्कों के बिलियन डॉलर्स की, कई 100 टन इमदाद के हजारों कंटेनर से ज्यादा आपके 4 थैलों की गाजा को सख्त जरूरत है? फलस्तीन के लिए इमदाद चाहिए कहकर क्यों मुसलमानों को गुमराह करते हुए गाजा के मजलूमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है? इस सवाल के जरिए से मैं अवाम को बताना चाहूंगा कि फलस्तीन और गाजा स्ट्रिप में दुनिया के किसी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। वॉर जोन का इंटरनेशनल लेवल पर एक सिस्टम है। उस सिस्टम के तहत सारे मुमालिक की कई 100 मिलियन डॉलर की इमदाद एक इंटरनेशनल एडहॉक कमेटी के जरिए से फलस्तीनियन गवर्नमेंट नेशनल अथॉरिटी से होते हुए गाजा में पहुंचाई जाती है। फलस्तीन व गाजा की इमदाद पहुंचाने के लिए वर्ल्ड बैंक इन्वॉल्व है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्किंग एजेंसीज UNRWA इन्वॉल्व है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल इन्वॉल्व है। तो अल्लाह ने आपको अक्ल दिया है तो सोचिए कि मामला आखिर है क्या, और मुसलमानों से फलस्तीन व गाजा के मजलूमीन के नाम पर चंदा लेकर किया क्या जा रहा है। 10वां और इस सेशन का आखिरी सवाल, फलस्तीन के नाम पर HYC के सोसाइटी और पर्सनल अकाउंट्स में जो पैसा लिया गया वो इंडिया से बाहर कैसे ट्रांसफर किया जा रहा? ट्रांसफर का सोर्स क्या है? जितने लोग HYC के नाम पर पर्सनल अकाउंट्स में डोनेशंस दिए हैं वो रकम HYC के जरिए से इंडिया से बाहर जाने के बाद टेरर फंडिंग के जमन में नहीं आएगी और डोनर्स को कोई परेशानी नहीं होगी। इस बात की डोनेशंस देने वालों को आप क्या गारंटी और तसल्ली देंगे? बराए मेहरबानी साथ में ये भी बता दीजिए कि इजिप्ट में चंद लोगों को HYC के स्टिकर्स लगाकर थैले बांट के फोटोज वीडियोस बनाने अवाम के पैसे में से कितनी रकम दी गई? HYC के 2 मेंबर्स की वीडियो मॉडलिंग, जज्बाती जिहादी जोशीले बैकग्राउंड के साथ वीडियोस, ये सब बनाकर सेल्फ मॉडलिंग और प्रमोशन के लिए, सेल्फ एडवर्टाइजिंग के लिए, अपने जाती प्रमोशन के लिए अवाम के चंदे की कितनी रकम इस्तेमाल की जाती है? इन सवालों का अवाम को जवाब दे दें। और हाँ, जवाब के बैकग्राउंड में गमजदा म्यूजिक, नात, खवालियां या जिहादी व जोशीले बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। अभी के लिए इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। Germantown Super Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement और Spine Surgery कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।